Morning students, how are you? I am your SS teacher Neha Sharma. Students, today we are doing the chapter number 9 in history, the making of regional culture. Okay, so students, as you know, India is a land of diversity. Okay, India is a land of diversity means India has its own distinct language, cloth, food, dance, music, painting and literature. Okay, it means when you move from one region to another, okay, their language, their food, their clothes and their dance, painting all are changed. Okay, for an example, like we are living in Haryana, if we move to Kerala or in Tamil Nadu, okay, their language, their tradition, their culture all are different from us. Okay, so स्टूडेंट दीज रीजनल कल्चर इवोल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब ये जो हमारा कल्चर होता है, डिफरेंट रीजन का अलग अलग कल्चर होता है, दैट इज इवोल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, ये हमारा जो कल्चर है दैट इज नॉट अ फिक्स्ड, इट इज चेंजिंग विद अ टाइम. ओके, इट इज चेंजिंग विद अ टाइम. कि जो हमारा कल्चर होता है वो टाइम के साथ चेंज भी होता है. ओके, ये नहीं है कि जैसा हमारे एंसेस्टर ने हमें दिया था वो वैसे का वैसा है, उसमें कुछ चेंजेस भी आते रहते हैं टाइम टू टाइम. ओके, एट सम टाइम अ कल्चर आर अ रिजल्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशन एंड आइडिया. ओके, मतलब काफ़ी बार कल्चर क्या होते हैं, किसी डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट ट्रेडिशन और डिफरेंट आइडियाज़ के मिक्सचर से भी बनते हैं. ओके, सो टुडे इन दिस चैप्टर वी विल डू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज. development development of language. A number of language developed and flourished in different part of India during the medieval period. It means in a medieval period a number of language has developed and flourished. Okay, when Muslim rulers came to India, they also brought Arabic and the Persian language, okay, to the country, and these language influence the development of some of the languages. मीन्स जैसे मुस्लिम रूलर्स हमारे इंडिया में आए तो उनकी जो लैंग्वेजेस थी लाइक अरेबिक एंड द पर्शियन लैंग्वेज वो भी हमारे इंडिया में आई. हमारे इंडियन पीपल्स ने उन लैंग्वेज को भी समझा और पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज का जो इम्पैक्ट जो था इंडिया में उस टाइम जो लैंग्वेज थी उन पर भी पड़ा. Okay, so the fusion of Persian and Hindi led to the development of Urdu. Fusion means mixture या combination of Persian and Hindi led to the development of Urdu. कि पर्सियन और हिंदी लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से एक न्यू लैंग्वेज डेवलप हुई दैट इज उर्दू. ओके, लाइक दिस इंडिया हैज़ speak many languages. India has many languages like Marathi, Kannada, Telugu, Tamil, and even in our constitution 22 language are mentioned. Okay, that is the official language of different state in India. So first language is Sanskrit. As you know, Sanskrit, you are still learning the Sanskrit in your 6th, 7th, 8th class. So beta, Sanskrit is very important language in India. Okay, since the Asian period, it was the official language of North India till the establishment of the ruler of Delhi Sultanate. कि जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज थी जिसको हम आज भी यूज़ करते हैं वो हमारे एशियन पीरियड की काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी. ओके, एंड इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नॉर्थ इंडिया. जो हमारा उत्तरी भारत है नॉर्थ इंडिया की, इट्स अ ऑफिशियल लैंग्वेज टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत. कि जब तक दिल्ली सल्तनत इंडिया में नहीं आई थी तब तक जो है संस्कृत जो है नॉर्थ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज थी. A number of work on a variety of subjects such as law, grammar, astronomy, poetry and religion were written in Sanskrit during the medieval period. Means a number of work on a different streams like law, grammar, एस्ट्रोनॉमी, पोइट्री एंड रिलीजन वर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज. कि हमारे मिडिवल टाइम में हमारी जो ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, पोइट्री एंड द रिलीजियन बुक्स जो होती हैं वो भी काफ़ी सारी जो है संस्कृत में लिखी गई हैं. ओके, आर वेदास, हमारे जो वेद हैं दैट इज़ ऑल्सो रिटन इन अ संस्कृत लैंग्वेज. ओके, इन द 11th century the Katha Sarit Sagar by Somdev is also written in the Sanskrit language. Okay, so during medieval period the Somdev wrote Katha Sarit Sagar. Okay, and it is a collection of story and legend.
जो हमारी कथा सरित सागर जो बुक जो है उसमें स्टोरीज एंड लेजेंड्स के बारे में बताया गया है. ओके, सो अनदर बुक इज राज तरंगिणी बाय कल्लन खा. इट इज ऑल्सो रिटन इन अ संस्कृत लैंग्वेज. ये वाली जो राज तरंगिणी बुक जो है ये भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है. एंड दिस बुक कंसिस्ट अ क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर. ओके, और ये जो बुक जो है राज तरंगिणी ये कश्मीर जो में जो राजा हुए थे उनकी क्रोनोलॉजी को बताती है. ओके, एंड द अनदर बुक इज गीत गोविंद दैट इज ऑल्सो रिटन बाय जयदेव इन अ संस्कृत लैंग्वेज. एंड दिस बुक डिस्क्राइब द लव ऑफ कृष्णा एंड राधा. ओके, सो by this we can say that Sanskrit is important language in ancient time, in a medieval time, and in a modern time also. Okay, now the second language is Persian. Okay, so Turk introduced Persian language in India. हमारे इंडिया में जो ये पर्सियन लैंग्वेज जो है वो टर्किश जो थे, जो टर्क्स पीपल थे वो लेकर आए थे. एंड इट बिकम देयर कोर्ट लैंग्वेज. और ये जो पर्सियन लैंग्वेज थी वो जो है उन लोगों की कोर्ट लैंग्वेज भी थी. ठीक है, कोर्ट की लैंग्वेज मतलब उनके दरबार में उसी लैंग्वेज में वर्क होता था. ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ द मिडिवल पीरियड वाज अमीर खुसरो. ओके, सो अमीर खुसरो वाज पर्सियन पोइट. ही राइट मैनी पोइट्री, मैथमेटिशियन. ही इज़ अ पोइट, स्कॉलर, मैथमेटिशियन एंड हिस्टोरियन. ये कवि भी थे, स्कॉलर्स थे, मैथमेटिशियन थे और हिस्टोरियन भी थे. एंड ही रॉट मैनी पोइट्री इन अ पर्सियन लैंग्वेज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी. ओके, इन्होंने काफ़ी सारी अपनी कविताएं जो हैं वो पर्सियन लैंग्वेज में लिखी है, बट उस पर्सियन लैंग्वेज के साथ साथ इन्होंने हिंदुस्तानी और अरेबिक जो लैंग्वेज होती है वो भी यूज़ की है. Okay, and he is a poet in a Delhi Sultanate time. Okay, he was a poet during the Delhi Sultanate period. Okay, so one of his important work is the Tughlaqnama. Okay, which is about the reign of Ghiyasuddin Tughlaq. कि जो पर्सियन लैंग्वेज में जो वर्क था दैट इज तुगलकनामा. ठीक है, इट्स अ बायोग्राफी ऑफ गियासुद्दीन तुगलक. ये जो तुगलकनामा जो है वो गियासुद्दीन तुगलक की बायोग्राफी है. एंड इट्स रिटन इन अ पर्सियन लैंग्वेज. ओके, एंड अदर पर्सियन पोइट वर मिनाज ई सिराज, बरानी, इसामी, अबुल फजल. ओके, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पर्सियन पोइट. सो हिंदी. ओके, हिंदी इज also a mother tongue of India. Hindi language started to develop between 7th century to 10th century. So Hindi language developed during 7th to 10th century. It developed from Sanskrit and various dialects such as खरी बोली, अवधी, ब्रिज भाषा and मैथिली. Dialect means होता है a particular form of language which is a peculiar to a specific region. Okay, dialect means a particular form of language that is speak in a particular area. कि कोई एक ऐसी लैंग्वेज जो किसी एक की पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है उसको हम डायलेक्ट बोलते हैं. संस्कृत so Hindi is a combination of Sanskrit and various dialects such as खरी बोली, अवधी, ब्रिज भाषी and मिथेली. And Prithviraj Raso, a heroic poem by चंद्र बरदाई is also written in a Hindi. Okay, पृथ्वीराज रासो जो है एक हीरोइक पोयम है, मतलब पृथ्वीराज के बारे में एक पोयम है जिसको कि चंद्र बरदाई ने लिखा था. इट इज़ ऑल्सो रिटन इन हिंदी. ये जो है वो हिंदी में लिखी गई है. एंड अकबर रेन सो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन हिंदी एज ही पेट्रोनाइज हिंदी पोइट. कि जो ड्यूरिंग द अकबर रेन की जब अकबर राजा थे उनके टाइम में he also flourished Hindi. Okay, some Hindi poet is Abdul Rahim Khan I Khana, popular called Rahim, wrote भक्ति पोइट्री इन हिंदी. की उनके दरबार में उनके कोर्ट में काफ़ी हिंदी कवि भी थे जैसे कि रहीम खान आई खाना जिन्होंने भक्ति पोइट्री लिखी है. Okay, and some of the important work written in 15th century include Tulsidas Ramcharitmanas, which is devoted to Ram, and Surdas Sursagar with them of devotion to Krishna. Bhakti Sant like Kabir and Namdev also wrote in Hindi.
कि भी 15th सेंचुरी में तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी थी, जिसमें कि उन्होंने राम के बारे में अपनी श्रद्धा दिखाई थी। ओके, सूरदास की सुरसागर हो गई, जिसमें उन्होंने कृष्णा के बारे में अपना डिवोशन दिखाया है। इसी तरह से कबीर और नामदेव जो हैं, इन्होंने भी जो अपनी लिटरेचर वर्क जो था उन्होंने वो हिंदी में ही लिखा था। सो स्टूडेंट, उर्दू, वी ऑल्सो रेड दैट उर्दू इज़ अ फ्यूज़न ऑफ पर्सियन एंड हिंदी लैंग्वेज, कि जो हमारी उर्दू लैंग्वेज है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सियन एंड हिंदी लैंग्वेज। ओके, एंड द वर्ड उर्दू इज टेकन फ्रॉम द टर्किश लैंग्वेज। जो हमारा उर्दू वर्ड जो है वो टर्किश लैंग्वेज से लिया गया है, विच लिटरली मीन कैंप। ओके, जिसका मीन्स क्या होता है, उर्दू वर्ड का मीन्स होता है कैंप। ओके, सो इट्स लैंग्वेज इमर्ज एज अ लिंक लैंग्वेज। ये क्यों लैंग्वेज बनी थी, क्योंकि इट्स अ लिंक लैंग्वेज। इट मीन्स द पीपल हु कम फ्रॉम टर्क, जो कि टर्क से जो लोग इंडिया में आ रहे थे, दैट इज नॉट अवेयर अबाउट द हिंदी एंड अदर लैंग्वेज। ओके, एंड द इंडियन इज ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट द उर्दू एंड द टर्किश एंड पर्शियन लैंग्वेज। और जो हिंदू थे वो भी उनकी लैंग्वेज नहीं जानते थे। सो क्या हुआ, पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज से एक मिक्सचर बना, दैट इज कॉल्ड उर्दू। और वो लैंग्वेज जो है वो एज अ लिंक लैंग्वेज यूज होने लगी उस टाइम में, मेडिवल पीरियड में। जिस तरह से नाउ दिस टाइम वी यूज इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज, कि जैसे इस समय में हम लोग जो है इंग्लिश को एज अ लिंक लैंग्वेज यूज करते हैं, उसी तरह से दैट टाइम उर्दू इज अ लिंक लैंग्वेज। ओके, सो इन नॉर्थ इंडिया Urdu become very popular under the Mughal, कि in the time of Mughal period Urdu become popular, and in Deccan Urdu acquired a standardized form called the Dakhni under the Bahmani rulers, कि जो दक्षिण में, डेक्कन का मतलब होता है हमारा दक्षिण जो इंडिया है, वहाँ पर उर्दू का एक नया ही रूप आया, दैट इज कॉल्ड दखनी। और जिसको किसने फ्लोरिश्ड किया, बहामनी रूलर्स ने। ओके, इट वॉज अ ब्लैंड ऑफ पर्सियन एंड अदर रीजनल लैंग्वेज। ओके, दखनी इज अ ब्लैंड और कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सियन एंड अदर रीजनल लैंग्वेज सच एज तेलुगु एंड तमिल। ओके, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ 18th centuries आर मीर ताकी मीर, ख्वाजा मीर दर एंड द मिर्जा सौदा। Tamil. Okay, so Tamil. So the Alvar and Nayanar. Alvar means the sant who show their devotion toward विष्णु। अलवार उन संत को बोला जाता था जो विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते थे। एंड नायनर आर द संत हु शो देयर डिवोशन टुवर्ड्स शिव। ओके, जो अपना श्रद्धा जो है वो शिव के प्रति दिखाते थे, मतलब जो शिव के भक्त थे उन्हें नयनर, और जो विष्णु के भक्त थे उन्हें अलवार कहा जाता था। एंड कंपोज्ड देयर डिवोशनल सॉन्ग इन तमिल। इन्होंने ही जो है अपने जो सॉन्ग थे, डिवोशनल सॉन्ग थे, उनमें उन्होंने तमिल लैंग्वेज यूज की थी। ओके, द हाइम्स और सॉन्ग टू शिवा आर कंपाइल्ड इन द तिरुमुरारी विच हैज 12 वॉल्यूम। कि जो शिव जी के लिए जो उनकी जो बुक्स थी उसको तिरुमुरारी बोला जाता है, एंड विच हैज 12 वॉल्यूम। ओके, और इस तिरुमुरारी बुक की 12 वॉल्यूम है। 12 वॉल्यूम मीन्स उसके 12 पार्ट हैं। ओके, एंड द हाइम टू शिवा एंड हाइम टू विष्णु कैन बी फाउंड इन अ नलयार दिव्या प्रबंधन बाय नथा मुनि। और जो विष्णु के लिए जो सॉन्ग्स या फिर जो हाइम्स थे उनको जो है नलालियार दिव्या प्रबंधम नाम जो है एक बुक थी जिसको कि नथा मुनि ने लिखा था, उसमें मिलता है। ओके, एंड दिस तमिल लैंग्वेज इज ऑल्सो पैट्रन एंड द फ्लोरिस्ड बाय द चोला रूलर्स। कि तमिल लैंग्वेज का किसने फ्लोरिस्ड किया था, मतलब कौन सा रूलर जो है तमिल को अपने कोर्ट में यूज करता था, दैट इज चोला रूलर। ओके, एंड कंबर्स रामायण ऑल्सो नोन एज कंबा रामायणम इज एन इम्पॉर्टेंट तमिल वर्क ऑफ दिस टाइम। कि कंबर्स रामायण मलयालम चेरा रूलर flourished this language, Malayalam language, in their court in Kerala. Okay, so the Chera kingdom of Mahopadhyam flourished and patroned this language in their court in
Kerala. Okay, so चेरा इंट्रोड्यूस मलयालम स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन. की जो चेरा रूलर्स थे उन्होंने ही मलयालम स्क्रिप्ट को अपनी इंस्क्रिप्शंस में, उनके जो रिटर्न वर्क होते थे, रिटर्न रिकॉर्ड होता था, उसमें वो लोग जो है मलयालम लैंग्वेज यूज़ करते थे. एंड मलयालम वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल एंड संस्कृत. कि मलयालम लैंग्वेज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल एंड संस्कृत. की मलयालम लैंग्वेज जो है तमिल और संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड है. कि मतलब मलयालम लैंग्वेज में आपको कुछ वर्ड्स या कुछ जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या कुछ वर्ड्स जो हैं वो तमिल और संस्कृत जैसे ही मिलेंगे. द फ्यूजन मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ संस्कृत एंड मलयालम इज कॉल्ड मणिपर्वलम. ओके, द fusion of Sanskrit and Malayalam, it means the combination of Sanskrit and Malayalam is called Maniparvalam. Okay, that is called Maniparvalam. And this Maniparvalam dialect is used in a Leela Tilkam. Okay, कि और जो ये डायलेक्ट, जो एक न्यू डायलेक्ट जो होती है, एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस हुई, जो स्टार्ट हुई, इसको जो है लीला टिकलम, एक ग्रामर और पोइटिक बुक है, उसमें यूज किया गया है. ओके, नाउ द लैंग्वेज इज तेलुगु. फ्रॉम 10th century onward, Sanskrit epic like Ramayana, Mahabharata, and Jain legends began to translate it into Telugu. So by the 13th century, various Telugu Shiva poets began contributing to Telugu literature. कि during the 10th century, Ramayana and Mahabharata and Jain literature is also translated into Telugu language. And Telugu language reached its peak during the Vijaya Empire. ये जो लैंग्वेज थी तेलुगु लैंग्वेज, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो विजयनगर एम्पायर जो थे उसके राजा थे कृष्णदेव राय. ओके, he patronized Telugu language, and the most famous of the Vijayanagar ruler was an accomplished Telugu poet and scholar himself. So Vijayanagar ruler, that is कृष्णदेव राय accomplished तेलुगु पोइट एंड स्कॉलर हिमसेल्फ. कि वो अपने कोर्ट में और वो कुछ टाइम टू टाइम जो है तेलुगु पोइट्स को और स्कॉलर्स को जो है वो कहते हैं ना अपने कोर्ट में बुलाते थे और उनकी एक मीटिंग जो होती है, असेंबली करवाते थे. ओके, एंड ही कंपोज्ड अ पोयम कॉल्ड द मुक्ता मलयादा. ओके, उन्होंने खुद ने वो जो है कृष्णदेव राय ने भी एक पोयम लिखी थी तेलुगु में, दैट इज मुक्ता मलयादा. ओके, एंड हीज कोर्ट वॉज फेमस फॉर द अष्ट दिग्गज. उनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज मीन्स 8 ग्रेट पोइट थे जो कि तेलुगु लिटरेचर पर ही वर्क करते थे. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. Okay, so this is a language development during the medieval period. So students, go through this. I will send you the PDF of this language development. You go through it, read it, and if you find any difficulty, you can ask to me. Bye students.